Hello everyone, welcome back to my channel Story with me, and today we are going to learn Riders to the Sea written by J.M. Sinch, John Millington Sinch. So we will start from the characters. Okay, so let's begin. Let's know about the character. Here Moria is described as a bereaved mother, okay, because she have suffered from so many loss of lives. Okay, she have suffered from so many problems, so many sufferings that we can't even imagine. If a mother loses her one child, then she is just like she is on her deathbed. But see, Moria has lost her husband's father, okay, her father-in-law, husband, and she has six sons and two daughters, but she already lost her five sons when the story starts. Okay, so it is a very grieful, very painful novel, or it's not a novel, it is a very painful play. uh, so let's know about it. There are characters. Who is Moria? One is Moria, second is her husband, who is not here, who has already died. Third, her husband's father, who has also already died. And her five six sons. Okay, six sons, among which five are already dead. Michael is dead, and we will know about Michael's death also, and even all his six sons death. Son, Shaw in Son, Seamus, Stephen, Patch, Michael, Bartley. These are the six sons of Moria, and two daughters of Moria are Kathleen and Nora. Kathleen is her elder daughter, who is about 20 years old, and Nora is a younger daughter. Okay, Kathleen is practical. Kathleen is practical as she is an elder one, and Nora is not that practical. Okay, Nora is very emotional one. So, in a great wind, okay, Stephen and Son were lost in a great wind. Seamus and his father were lost in a dark night. Matlab, they were died in a dark night. And Michael was drowned in the far north somewhere. So this story, where does this story opens? But let's know that this is a play in one act, and it is published in 1904. It is first performed at Molesworth Hall, Dublin on 25th February 1904. So let's know that Key Riders to the Sea is an Irish play. Okay, it is an Irish play, and even the dramatist James Synge belonged to Ireland. So he wrote about Ireland, culture of Ireland, or something that an island of Ireland. And it is an Irish play. Okay, this drama is a fight between nature and human, nature versus human. There is an Aran Island, okay, and this story also opens in that Aran Island. And this story, not story, this play is written in Hiberno English. Matlab, it is quite hard to understand. If we know normal English, then it will be quite hard for us to understand. Like, we don't use herself, she self, you self, right, this type of word, but here it is used that. So it is a Hiberno English. The story opens in the island of the west of Ireland. Where does the story opens? The story opens in the island of the west of Ireland. आयरलैंड के पश्चिमी भाग में एक आइलैंड है. आयरलैंड में 3 आइलैंड है, ठीक है. तो उसके पश्चिमी भाग में बीच वाला जो आइलैंड है, उस आइलैंड में क्या होता है, ये स्टोरी ओपन होता है एक कॉटेज किचन में. एक कॉटेज किचन में ये ओपन होता है. लेट्स नो दैट वेयर इज़ द कॉटेज किचन. सो एक कॉटेज किचन में ये स्टोरी ओपन होता है. सो दिस इज़ द कॉटेज किचन. ओके, एक कॉटेज किचन में ये स्टोरी ओपन होता है. एंड उस कॉटेज किचन में नेट्स होते हैं. एज वी कैन सी हियर, दिस आर द नेट्स. ओके, दिस आर द नेट्स. एंड नेट्स के साथ साथ यहाँ पे क्या भी होता है, ऑयल स्किन्स भी होती है, ठीक है, ऑयल स्किन्स भी होती है. एंड वाइट बोर्ड्स भी होते हैं, एंड स्पिनिंग व्हील भी होता है. तो सब कुछ यहाँ पे होता है, एंड सब कुछ के साथ यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टोरी ओपन हो रहा है. स्टैंडिंग बाय द वॉल. ओके, वाइट बोर्ड्स आर स्टैंडिंग बाय द वॉल. तो क्या होता है कि स्टोरी कैसे ओपन होता है, स्टोरी एक आइलैंड में ओपन होता है. स्टोरी एक आइलैंड में ओपन होता है जो कि आयरलैंड के पश्चिमी भाग में स्थित है. और ये स्टोरी एक कॉटेज किचन में ओपन होता है, जहाँ पे नेट्स, ऑयल स्किन्स, स्पिनिंग व्हील एंड कुछ न्यू बोर्ड्स भी है जो वॉल के साइड में रखे गए हैं. यहाँ पे एक सुंदर सी लड़की दिख रही है आप लोगों को, राइट. सी इज़ कैथलीन.
Okay, this girl is Kathleen. She is about 20 years old and she is the elder daughter of Moria, and this girl is Nora, who is the younger daughter of Moria. So what is Kathleen doing over here? She finishes kneading cake. Okay, मतलब वो केक गूंद रही थी, केक गूंदना उसने ख़त्म कर लिया. फिर केक गूंदने के बाद वो क्या कर रही है, केक बनाने के बाद वो क्या कर रही है, उसको पोट ओवन में डाल के फायर में रख रही है. फिर अपने हाथ साथ पोंछती है, एंड हाथ साथ पोंछने के बाद ये जो स्पिन यहाँ पे नज़र आ रहा है, इस स्पिन को घुमाने लगती है. ठीक है, स्पिन को घुमाने लगती है. फिर ये जो नोरा है, नोरा यंग गर्ल, वो क्या करती है, दरवाजे के इधर से अपना सिर घुसा के बैठती है. दरवाजे से अपना सिर घुसा के वो यहाँ पे बैठती है, रहती है, मतलब दरवाजे से सिर घुसा के देख रही होती है. अब उसका एंट्री भी हो जाएगा. फिर नोरा एक धीमे से आवाज़ में कैथलीन से कहती है कि वेर इज सी. अब वेर इज सी, यहाँ पे सी का मतलब है मदर. मौर्या को बताया गया है, यहाँ पे सी मौर्या को बताया गया है. कैथलीन, शी इज़ लाइंग, गॉड हेल्प हर एंड मे बी स्लीपिंग इफ सी इज एबल. अब देखो बात क्या है कि ये पूरा ये जो कन्वर्सेशन है, नोरा, कैथलीन, मौर्या, इन सब के बारे में नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इन सब के बारे में एग्ज़ाम सेमेस्टर 3 में दे चुके हैं. ठीक है, मतलब 1 मार्क्स का जो MCQ था उसमें हम लोगों ने ये डिस्क्रिप्शन में पढ़ के इसको दे दिया है, कहाँ मरा था डोनिगल में, क्या क्या मिला था, शर्ट, प्लेन, स्टॉकिंग्स मिले थे, राइट, मरने वाला किसने बताया था किसको, यंग फ्रिस ने. ऐसे क्वेश्चंस वी हैव ऑलरेडी गिवन इन सेमेस्टर 3 MCQ बेस्ड, राइट. सो अभी हम लोगों को यहाँ से इस चैप्टर से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है. 5 मार्क्स का, कंप्लीट 5 मार्क्स का. 1+2, 3+2 ऐसा नहीं आएगा, 4+1 ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा, कंप्लीट 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा. तो जानने की बात क्या है कि स्टोरी कहाँ पे ओपन हुई, वेयर डज द स्टोरी ओपन्स, ये जानना ज़रूरी है. एंड वो ओपन हुआ था आइलैंड में, वेस्ट ऑफ आयरलैंड के आइलैंड में ये चीज़ ओपन होता है. कॉटेज किचन वगैरह फर्स्ट में जो अंडरलाइंड वर्ड्स दिए गए हैं उनको पढ़ो, कैसे स्टोरी ओपन हुआ वो पढ़ो. एज मैंने बता दिया कि फायर वगैरह था, तो नोरा अपना सिर ऐसे वो कर रही थी दरवाजे के इधर से, तो स्टोरी उस तरीके से ओपन हुआ. और स्टोरी कैसे ओपन हुआ वो बताने के बाद ये भी लिख देना कि नोरा अंदर, फिर उस दरवाजे से ऐसा सर्व करने के बाद नोरा धीरे से अंदर आती है. ओके, नोरा कम्स इन सॉफ्टली. फिर वो अपने सॉल के अंदर से एक बंडल निकालती है, और उस वक्त क्या कर रही होती है, कैथलीन व्हील स्पिन कर रही होती है. सो दैट इज़ इनफ. स्टोरी कैसे ओपन हुआ ये बताने के लिए इतना इनफ है. सो इसके बाद क्या जानना ज़रूरी है, क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करूँगी, बट आई थिंक नेक्स्ट वीडियो विल बी सुटेबल फॉर दैट. बट कोई बात नहीं, यहाँ पे भी मैं कर सकती हूँ. ठीक है, अब ऐसे होता है, कैथलीन क्या होती है, कैथलीन 20 साल की एल्डर डॉटर होती है. एंड नोरा को क्या होती है, नोरा यंगर डॉटर होती है. कैरेक्टर्स के नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है. मौर्या के हस्बैंड, मौर्या के हस्बैंड्स के फादर. ठीक है, मौर्या के 6 बेटे थे एंड 2 बेटियाँ. तो मौर्या के टोटल 8 क्या थे, 8 चाइल्ड्स थे. मौर्या के 8 चाइल्ड्स थे. उन 8 चाइल्ड्स में से सिर्फ 3 चाइल्ड्स ही बचे थे, बाकी के 5 चाइल्ड्स मर चुके थे. जब स्टोरी ओपन होता है तभी मौर्या के 5 चाइल्ड्स मर चुके होते हैं, 5 सन्स मर चुके होते हैं. मौर्या का हस्बैंड भी मर चुका होता है, मौर्या के हस्बैंड के फादर भी मर चुके होते हैं. जो इस प्ले में एक्टिव है, जो इस प्ले में जिंदा है, वो सिर्फ मौर्या है. मौर्या का बेटा बार्टले, सबसे छोटा बेटा बार्टले, मौर्या की बड़ी बेटी कैथलीन, मौर्या की छोटी बेटी नोरा. एंड यहाँ पे एक प्रिस्ट वगैरह होते हैं, कुछ लड़कियाँ मैन वीमेन भी होते हैं, वो भी होते हैं, बट उनके बारे में इतना ज़रूरी नहीं है जानना. ठीक है, तो हमें यहाँ पे अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमें जानने पड़ेंगे. एंड द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज़ मौर्या के कैरेक्टर के बारे में. डिस्कस द कैरेक्टर ऑफ मौर्या कैसी है, मौर्या कहाँ है, मौर्या को क्या क्या दुख सहना पड़ा, वो सब कुछ हमें यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि मौर्या की कैरेक्टर 5 मार्क्स का आ सकता है. डिस्कस अबाउट द सन्स ऑफ मौर्या के बेटों के बारे में डिस्कस करो, ये भी आ सकता है. सन, सीमस, स्टीफन, पैच, माइकल एंड बार्टले, ये सब कैसे मरे वो चीज़ बता दोगे तो इनफ हो जाएगा. ठीक है, एंड मौर्या के 2 गर्ल्स होते हैं, 2 डॉटर्स होती है, कैथलीन एंड नोरा. इनके बारे में कॉमन आइडिया रखो, लाइक मतलब ये 20 साल की है कैथलीन, ये प्रैक्टिकल है, एंड ये सबसे बड़ी बेटी है. एंड नोरा क्या है, नोरा
थोड़ी इमोशनल है एंड छोटी बेटी है, ये नॉर्मल यहाँ पे रखो ज्ञान, ठीक है। तो इतना रखोगे तो क्योंकि अब इतना रखोगे, देखो कैथलीन के बारे में इतना पता करोगे ना, और मौर्या के बारे में, मौर्या एक बुढ़ी सी लड़की है जिसके सारे बच्चे बाप बूढ़े सब कुछ मर चुके हैं, इतना ही कॉमन नॉलेज याद रख लो। फिर जो बेटे हैं ना, सॉन, सीमस, स्टीफन, पैच, माइकल एंड बाटले के बारे में अगर तुम लोग याद रखोगे, 2-2 लाइनें सही याद रखोगे तो 10 लाइन 12 लाइन बन जाएगा। 6 बेटे, एक बेटे के बारे में 2 लाइन तक कुछ 2 सेंटेंस कुछ याद रखोगे तो टोटल 6 बेटों के लिए तुम 12 लाइन 12 सेंटेंसेस याद कर लोगे। एंड अगर मौर्या के बारे में आया तो मौर्या के ये बेटे थे, इन बेटों का ऐसा 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 हुआ लिख देना। अगर कैथलीन के बारे में आया तो कैथलीन के कुछ भाई थे, कैथलीन के पिताजी और कैथलीन के दादाजी दोनों मर गए। कैथलीन की एक माँ थी, कैथलीन के 6 भाई थे, 6 भाई में से 5 भाई मर गए, 5 भाई में से एक भाई 5 भाई मर गए और एक भाई बचा था वो भी मर गया। एंड सॉन, सीमस, स्टीफन, पैच, माइकल, बाटली के बारे में जो कुछ भी याद किया होगा सब चिपका देना। नोरा के बारे में आया तो भी सेम है, कुछ इमोशनल थी नोरा, यंगर डॉटर ऑफ मौर्या थी, उसके भी पापा मर गए, पापा के पापा भी मर गए। वो लोग सी में रहते थे, वेस्ट आयरलैंड में रहते थे, ठीक है। वहाँ घर का काम अब उन लोगों को ही देखना था क्योंकि उनके भाई नहीं थे, उनके भाई मर चुके थे। एंड उनके भाई कैसे मरे वो भी यहाँ पे लिख देना सब नोरा में। मतलब ये क्वेश्चन पढ़ोगे कि सॉन, सिमस, स्टीफन, पैच, माइकल एंड बाटले कैसे मरे, तो तुम्हारा सारा का सारा 5 मार्क्स का क्वेश्चन इसी में कवर हो जाएगा, तुम्हें कुछ भी वो नहीं होगा, प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड आउट ऑफ दिस तुम्हें क्या याद रखना पड़ेगा कि लास्ट में जो होता है ना, क्या होता है, लेट्स सी, ओके। लास्ट में यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लाइन कहती है, ठीक है, दे आर ऑल गॉन नाउ। इन पेज नंबर 24 यू कैन सी दैट मौर्या सब लोग जाते हैं, फिर मौर्या टेबल में क्या करती है, अपना घुटनों के बल बैठ के टेबल में अपना सिर रखती है, फिर धीरे धीरे रोने लगती है, धीरे धीरे रोने लगती है। कैथलीन और नोरा भी टेबल के दूसरे दूसरे साइड्स में नील डाउन करके रोने लगते हैं, मतलब रोने लगते हैं, ठीक है, क्योंकि बाटले मर चुका होता है उस टाइम पे। ये स्टोरी का एंडिंग पार्ट है। तो यहाँ पे क्या है कि मौर्या कहती है दे आर ऑल गॉन नाउ एंड देयर इज not anything, there isn't anything more the sea can do to me. I will have no call now to be up crying and praying when the wind breaks from the south and you can hear the surf is in the east and the surf is in the west, making a great stir with the two noises and they hitting one on the other. I have no call, I will have no call now to be going down and getting holy water in the dark nights after some rain. And I won't care what way the sea is when the other women will be keening. Give me the holy water, Nora. There is a small sap still on the dress. कहती है वो। फिर ये ऐसा, मतलब ये ग्रीविंग वॉइस होता है उसका सारे बच्चों मरने के बाद। What did Moria told when she lose all of her sons? ये आ सकता है, What did Moria told when she lost all of her sons? तो ये जितना मैंने अभी पढ़ा, डिक्टेट किया, वो पेज नंबर 24 के ऊपर सबसे ऊपर वाला पैराग्राफ में भी है, देख के भी लिख सकते हो, वरना मैंने जो डिक्टेट किया वीडियो स्टॉप कर करके उसको तुम नोट डाउन भी कर सकते हो। तो वो जो चीज़ है ये चीज़ नहीं भूलनी है। सारे के सारे बच्चे मरने के बाद मौर्या ने ये चीज़ कहा था, 5 मार्क्स का ये भी आ सकता है, ठीक है। स्टोरी एंड कैसे हुआ? स्टोरी एंड मौर्या थी, मौर्या के साथ हस्बैंड था, उसका हस्बैंड का फादर था, सब लोग मर गए। 6 बेटे थे, 6 बेटों में से 6 ही बेटे मर गए और अभी सिर्फ मौर्या, कैथलीन एंड नोरा ही बचते हैं स्टोरी के एंड तक। ऐसा मतलब ऐसा लिख देना, स्टोरी के एंड तक मौर्या, नोरा, कैथलीन ही बचते हैं। सब उनकी फैमिली को बहुत सारा दुख उठाना पड़ा, दुख झेलना पड़ा। सी ने उनका सब कुछ लूट लिया, घर बार धन संपत्ति सब कुछ लूट लिया, बेटे बाप सब कुछ लूट लिया। मतलब ऐसे तुम लोग बना के कहानी को लिख सकते हो कि एंडिंग कैसे हुई है, ठीक है। Moria had discussed how Moria's grief, resignation, and acceptance of loss embody the theme of human vulnerability against invincible fate. ये जो थर्ड क्वेश्चन है, ये जो वन प्ले ख़त्म होगा इन वन एक्ट में, उसके बाद 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं डेल्व डीप बोल के। तो थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर वही लिखना है, ठीक है, जो ये मौर्या ने लास्ट में कहा दे आर ऑल गॉन नाउ वाला लाइन वही लिख देना है। एंड डिस्कस हाउ सींज, नंबर 2 क्वेश्चन, डिस्कस हाउ सींज यूजेज द सी एज अ सिंबल ऑफ फेट, नेचर्स इंडिफरेंस and the source of inevitable loss in Riders to the Sea। इसमें क्या लिख देना है, जो सॉन, सीमर्स, स्टीफन, पैच, माइकल, बाटले कैसे मरे, ठीक है, उन सब के बारे में यहाँ पे लिख देना है, हो जाएगा। सी क्या करता है ह्यूमन के फेट के साथ, सी का क्या कनेक्शन है ये बता देगा। ह्यूमन को सी मार रहा है उसी चीज़ को बताना है ना, तो इन 6 के डेथ में वो चीज़ क्लियर हो जाएगी।
द सी हैज़ टेकन ऑल माई सन्स, एक्सप्लेन हाउ दिस लाइन रिप्रेजेंट द रिलेंटस पावर ऑफ नेचर इन द प्ले, कॉमेंट ऑन द इमोशनल इम्पैक्ट दिस लाइन हैज़ ऑन मौर्याज कैरेक्टर। सी हैज़ टेकन ऑल माई सन्स, ये सी क्या करती है, मौर्या के सारे बच्चों को लेकर जाती है। कैसे, अब इसमें भी वही करना है, सॉन सिमस, स्टीफन पैच, माइकल बार्टले, सबके बारे में लिख देना है, सब लोग कैसे मरे वो लिख देना है। एक ही क्वेश्चन तुम्हें सबके लिए काफ़ी हो जाएगा, ठीक है। वो लिख देना है कि ये लोग कैसे मरे। और ऐसे ही एक सी क्या करता है, एक माँ के सारे बच्चों को लेके डूबता है, सारे बच्चों को लेके मार के डूब जाता है। सी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, भयावह है, अपने बच्चों को मार देता है। उस मौर्या के सारी फैमिली मेम्बर्स को इसने मार दिया, मौर्या के एक भी बच्चे को सी ने जिंदा रहने नहीं दिया। यही चीज़ लिख देना, इमोशनल इफेक्ट। और मौर्या का कैरेक्टर, मौर्या को कितना इमोशनल टॉर्चर, इमोशनल सफरिंग हुआ होगा कि उसके सारे के सारे बच्चे जो थे वो मर गए। मौर्या एक बिरीव्ड मदर है यहाँ पे, यही चीज़ यहाँ पे बता देना है, तो ये भी 5 मार्क्स का हो जाएगा, ठीक है। तो इतना ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मौर्या कैसी थी, मौर्या का कैरेक्टर, नोरा एंड कैथलीन का कैरेक्टर में सब कुछ। मौर्या का कैरेक्टर, नोरा कैथलीन का कैरेक्टर में सिर्फ मौर्या ओल्ड वीमेन है, ये याद रखना है। कैथलीन एल्डर डॉटर, नोरा यंगर डॉटर। बाकी का जो भी लिखोगे, सन, सीमस, स्टीफन पैच, माइकल बार्टले के बारे में लिखोगे, इन सबका वही है। चाहे मौर्या का कैरेक्टर आए वही डाल देना, कैथलीन का कैरेक्टर आए वही डाल देना, नोरा का कैरेक्टर आए तो भी वही डाल देना, जो भी आए वही डाल देना, ठीक है। एंड दैट्स ऑल। इतना पढ़ोगे तो काफ़ी हो जाएगा तुम लोगों के लिए। स्टोरी कैसे ओपन हुई वो याद रखना जरूरी है, कहाँ ओपन हुई वो भी याद रखना जरूरी है, क्योंकि 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो वैसे आप जो छोटे छोटे क्वेश्चन है वो नहीं आएंगे, वो पहले ही आ चुके हैं। सो थैंक यू सो मच। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलना।